Hello students, I welcome you to this brand new chapter for CBSE class 10th. This is your 5th chapter in the book Patol Babu Film Star, written by Satyajit Ray. Now this chapter is the story of a man who is passionate for acting and once was a famous stage artist. It details his experiences and struggles of life. It tells us that how a small acting role in a film after a sabbatical of 20 years rekindles his passion. Sabbatical means a break of 20 years. Rekindles means that again his passion is revived. So let's get started. I'll tell you the topics that we'll cover here. We'll talk about the author, then I have a background of the chapter, then we'll have the chapter and its explanation. Then we'll have a summary followed by the question and answers. Now students, this is the author of this chapter, Satyajit Ray. He was born in the year 1921 in Kolkata and he died in the year 1992. Satyajit Ray is an Indian filmmaker who wrote and made films in Bengali. So ज़्यादातर सत्यजीत रे जो फिल्म्स बनाते थे और जो कहानियां लिखते थे वो बंगाली लैंग्वेज में थी, जो कि इनकी नेटिव लैंग्वेज है. He is widely regarded as one of the greatest filmmakers of the 20th century. So ये बहुत ही ज़्यादा फेमस स्टोरी टेलर हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस फिल्म मेकर हैं. इनकी बनाई हुई फिल्म्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं, वर्ल्डली एक्लेम्ड है. Ray directed 36 films including feature films, documentaries and short films. He was also a fiction writer, publisher, illustrator, calligrapher, music composer, graphic designer and film critic. He authored several short stories and novels primarily aimed at children and adolescents. ना सिर्फ सत्यजीत रे फिल्म मेकर थे पर उसके अलावा वो फिक्शन कहानियां भी लिखते थे, बुक्स भी पब्लिश करते थे, वो इलस्ट्रेटर थे, कैलीग्राफर थे, बहुत सारे काम किए उन्होंने. ही वॉज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन और उन्होंने काफी सारी ऐसी छोटी कहानियां और नॉवेल्स लिखी हैं जिनका जो मेन उनका एम था, जिनके लिए वो लिखते थे, वो थे बच्चे और एडोलेसेंट्स यानी कि टीनेजर्स. In the year 1992, Satyajit Ray received the Honorary Academy Award, that is the Lifetime Achievement. Ray is the first and the only Indian yet to receive the honor. Students, 1992 में सत्यजीत रे को अकेडमी अवार्ड मिला था फॉर हिज लाइफ टाइम अचीवमेंट. ये एक बहुत ही बड़ी अकम्पलिशमेंट है और वो फर्स्ट और ओनली इंडियन है जिनको ये ऑनर मिली है. अब ये अकेडमी अवार्ड्स क्या होते हैं? इनको हम ऑस्कर्स भी कहते हैं. दिस इज एन एनुअल अमेरिकन अवार्ड सेरेमनी होस्टेड बाय द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स, आर्ट्स एंड साइंसेज to recognize excellence in cinematic achievements in the United States. Now let us see a background of the chapter. Patol Babu was a theatre artist years ago, but life had been harsh with him and killed the actor in him. After a long break, he got an opportunity to act again. Not in a drama, but in a film. All he had to play was to walk absent-mindedly and bump against the hero and exclaim, "Oh!" This is the story of his bond with the art of acting, which is above all monetary benefits. The only thing he seeks is the satisfaction of performing his role well. तो इस स्टोरी में जो कैरेक्टर है मेन वो है पटोल बाबू. वो एक थिएटर आर्टिस्ट थे बहुत साल पहले, पर उनके साथ लाइफ में ऐसे इंसिडेंसेस हुए, इतनी हार्शनेस हुई कि जो उनका एक्टिंग स्किल था उसको ज्यादा प्रोत्साहन नहीं मिला. तो वो इतने उलझे हुए थे लाइफ में, लेकिन कुछ सालों बाद उनको फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिली एक्ट करने की और इस बार ये ड्रामा नहीं था पर एक फिल्म में उनको एक रोल मिला था. और रोल थोड़ा छोटा था. वो एक पेडेस्ट्रियन थे यानी कि उनको पैदल चलना था और उन्होंने हीरो में टकराना था और सिर्फ ओह बोलना था. तो ये जो कहानी है इसमें हमें पता चलता है कि पटोल बाबू का जो बॉन्ड है यानी कि जो उनका एक लिंक है एक्टिंग के साथ वो कितना गहरा है और वो पैसे से ऊपर उठकर है. उनको पैसे की लालच नहीं है पर वो एक्टिंग में इतना ज्यादा इन्वॉल्व है,
वो इतना ज्यादा डिटेल में अपनी एक्टिंग में ध्यान रखते हैं कि उनका यही एक पैशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है, और उनको सिर्फ एक सेटिस्फैक्शन चाहिए कि हाँ, उन्होंने अपना जो रोल था वो बहुत अच्छे से परफॉर्म किया. Now here is the chapter and the explanation. Patol Babu had just hung his shopping bag on his shoulder when Nishikanto Babu called from outside the main door. Patol, are you in? Oh, yes, said Patol Babu. Just a minute. तो अब पटोल बाबू अपना शॉपिंग बैग अपने शोल्डर पर टांग कर घर से जा रहे थे शॉपिंग के लिए, और तभी उनके एक नेबर थे निशिकांतो बाबू, वो आए और उन्होंने उनको आवाज लगाई, पूछा क्या तुम घर में हो? तो पटोल बाबू ने कहा हाँ मैं घर में ही हूँ, और उन्होंने कहा 1 मिनट रुको, मैं अभी आ रहा हूँ. निशिकांतो घोष लिव्ड 3 houses away from Patol Babu in नेपाल भट्टाचार्य लेन. नेपाल भट्टाचार्य लेन क्या है? एक पतली सी लेन है, एक सड़क है जिसके किनारे पटोल बाबू का घर था, और उनके घर से 3 घर छोड़ के निशिकांतो घोष का घर था. ही वॉज अ जीनियल पर्सन. अब यहाँ पर राइटर बता रहे हैं निशिकांतो घोष कैसे इंसान थे. वो जीनियल थे. जीनियल मीन्स फ्रेंडली एंड वार्म. पटोल बाबू केम आउट विद द बैग. What brings you here so early in the morning? Listen, what time will you be back? In an hour or so. Why? अब यहाँ पर बातचीत हो रही है पटोल बाबू और निशिकांतो घोष के बीच में. पटोल बाबू अपने घर से बाहर आ जाते हैं, उन्होंने बैग टांगा हुआ है शोल्डर पे, और वो निशिकांतो से पूछते हैं कि तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो निशिकांतो पूछते हैं पटोल बाबू से कि तुम घर कितनी देर तक वापस आओगे, और पटोल बाबू कहते हैं कि मैं 1 घंटे तक में वापस आ जाऊंगा. और वो पूछते हैं कि क्यों, क्या बात है? आई होप यू विल स्टे इन आफ्टर दैट. टुडे बीइंग टैगोर's बर्थडे. अब यहाँ पर निशिकांत पटोल बाबू से कहते हैं कि मैं सोच रहा हूं कि शायद तुम उसके बाद घर में ही रहोगे. स्टे इन मीन्स स्टे एट होम. तो वो ये पूछना चाह रहे हैं कि 1 घंटे बाद जब वो वापस आएंगे तो उसके बाद वो पूरा दिन घर पे ही होंगे क्या? क्योंकि वो दिन है रविंद्रनाथ टैगोर का बर्थडे और वहां पर छुट्टी मनाई जाती है. फिर निशिकांतो कहते हैं आई मेट माई यंगेस्ट ब्रदर इन लॉ इन नेताजी फार्मेसी yesterday. He is in the film business in the production department. अब निशिकांतो बताते हैं कि वो अपने ब्रदर इन लॉ यानी कि अपनी बहन के हस्बैंड को मिले थे, या फिर अपनी वाइफ के ब्रदर को, कुछ भी हो सकता है. तो वो उनको मिले थे नेताजी फार्मेसी में. फार्मेसी इज अ शॉप और अ हॉस्पिटल डिस्पेंसरी वेयर मेडिसिनल ड्रग्स आर प्रिपेयर्ड और सोल्ड. और फिर वो बताते हैं पटोल बाबू को कि उनका जो ब्रदर इन लॉ है वो फिल्म बिजनेस में है. वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो होता है फिल्म मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें काम करता है. He said he was looking for an actor for a scene in a film they are now shooting. The way he described the character, 50ish, short, bald-headed, it reminded me of you. So I gave him your address and asked him to get in touch with you directly. I hope you won't turn him away. They will pay you, of course. तो अब निशिकांतो पटोल को फर्दर बताते हैं कि जो उनका ब्रदर इन लॉ है वो एक एक्टर ढूंढ रहा है अपनी मूवी के सीन के लिए, और जो उसने डिस्क्रिप्शन दी थी कैरेक्टर की कि वो 50 इयर्स का होना चाहिए, शॉर्ट हाइट का होना चाहिए और बॉल्ड हेडेड. बॉल्ड हेडेड मीन्स उसके सिर पे बाल नहीं होने चाहिए. तो ये जो डिस्क्रिप्शन थी ये बिल्कुल पटोल बाबू की तरह थी. तो निशिकांतो को पटोल बाबू का माइंड में आया, तो उन्होंने पटोल बाबू का एड्रेस दे दिया उसको और उसको कहा कि पटोल बाबू से मिल ले, शायद वो ये रोल परफेक्टली कर पाएगा. और फिर वो पटोल बाबू को कहते हैं कि तुम उसको वापस मत भेज देना और वो तुमको पे भी करेंगे. ये वो क्यों कहता है कि वो तुमको पे भी करेंगे? बिकॉज निशिकांतो नोज दैट पटोल बाबू नीड्स मनी, सो ही इज ट्राइंग टू ल्योर हिम कि पैसों के लालच में वो उनके ब्रदर इन लॉ को मिलेंगे और ये रोल एक्सेप्ट कर लेंगे.
Patol Babu had not expected such news at the start of the day. That an offer to act in a film could come to a 52-year-old non-entity like him was beyond his wildest dreams. अब पटोल बाबू ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी न्यूज के उनके लिए एक मूवी रोल की ऑफर आएगी। दिन के शुरुआत में सुबह सुबह उनको ऐसी कोई खबर मिलेगी। वो नहीं सोच सकते थे कि एक फिल्म में एक्ट करने का रोल उनके जैसे 52-year-old यानी कि एक ओल्ड पर्सन को मिलेगा, जो कि एक नॉन एंटिटी है। नॉन एंटिटी मीन्स एन अनइम्पॉर्टेंट पर्सन और थिंग, and this thing was beyond his wildest dreams. Beyond his wildest dreams means कि वो बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकते थे, ये उनकी सोच के बाहर था। तो जब किसी को ऐसी कोई खबर मिलती है जो उसके सोच के बाहर होती है, तो वो एकदम से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अनबिलीवेबल स्टेट होती है उसके माइंड की। Well, yes or no? asked Nishikanto Babu. I believe you did some acting on the stage at one time. अब निशिकांतो बाबू पूछते हैं पटोल को कि तुम हाँ कहते हो ये या फिर ना, और वो उनको याद दिलाते हैं कि तुमने अपनी यंग एज में स्टेज पर भी एक्टिंग की थी। That's true, said Patol Babu. I really don't see why I should say no. But let's talk to your brother-in-law first and find out some details. What's his name? Naresh. Naresh Dutt. He's about 30. A strapping young fellow. He said he would be here around 10:30. अब पटोल बाबू कहते हैं कि हाँ ये तो सही बात है, मैंने अपनी यंग एज में एक्टिंग की थी स्टेज पे और कोई रीजन नहीं है मेरे लिए नो कहने का, मना करने का। पर वो कहते हैं कि चलो मैं एक बारी तुम्हारे ब्रदर इन लॉ से बात करूंगा कुछ डिटेल्स के लिए, कुछ जानना चाहूंगा रोल के बारे में, कैसा रोल है, क्या रोल है, और फिर डिसाइड करूंगा। और फिर वो निशिकांतो से नाम पूछते हैं उसका। वो बताता है उसका नाम है नरेश दत्त, और वो कहता है वो 30 इयर्स का है। अ स्ट्रैपिंग यंग फेलो मीन्स वो काफी लाइवली और एक्टिव है। और वो कहता है कि उसने कहा था वो अराउंड 10:30 आएगा तुम्हारे पास। Buying provisions in the market, Patol Babu mixed up his wife's orders and bought red chilies instead of onion seeds. And he quite forgot about the aubergines. अब पटोल बाबू इतने कंफ्यूज थे क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी एक्टिंग की ऑफर आएगी उनके लिए, तो उन्होंने अपनी जो वाइफ का सामान खरीदना था वो सब मिक्सअप कर दिया। उन्होंने रेड चिलीज खरीद ली अनियन सीड्स की जगह, और वो ऑबरजीन्स खरीदना तो भूल ही गए। ऑबरजीन्स आर ब्रिंजल्स विच इज अ वेजिटेबल। दिस वॉज नॉट सरप्राइजिंग। एट वन टाइम पटोल बाबू हैड अ रियल पैशन फॉर द स्टेज। इन फैक्ट इट वर्ज्ड ऑन ऑब्सेशन। अब ये बात हैरानी वाली नहीं थी कि पटोल बाबू इतने कंफ्यूज हो गए थे। क्यों? क्योंकि पटोल बाबू वॉज वेरी पैशनेट फॉर द स्टेज। उनको बहुत ज्यादा क्रेज था एक्टिंग का। In fact, it was an obsession. Obsession is a state in which he could not think of anything else. तो यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि पटोल बाबू को इतना ज्यादा क्रेज था एक्टिंग का कि वो और कुछ तो सोच ही नहीं पाते थे। तो इसलिए जब उनको ये रोल मिला इतना सरप्राइजिंगली, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो फिर से वो इतना उसके बारे में सोच रहे थे, अपनी एक्टिंग के बारे में, अपने पास्ट एक्टिंग के बारे में, कि वो इतने कंफ्यूज हो गए और सारा अपनी वाइफ का जो सामान खरीदना था उसको मिक्सअप कर दिया। इन जात्रास, इन एमेच्योर थिएट्रिकल्स, इन प्लेस पुट अप बाय द क्लब इन हिज नेबरहुड, पटोल बाबू वॉज ऑलवेज इन डिमांड। अब यहाँ पर राइटर बताते हैं कि पटोल बाबू बहुत ज्यादा डिमांड में थे एज अ एक्टर ऑन द स्टेज। वो जात्रास में परफॉर्म करते थे, एमेच्योर थिएट्रिकल्स में परफॉर्म करते थे। एमेच्योर मीन्स नॉन प्रोफेशनल, मीन्स कि वो एक प्रोफेशनल नहीं थे। अपने ही घर के आसपास के जो उनके लोग थे वो आते थे वहां स्टेज पर उनके शोज देखने के लिए, और वो प्लेस करते थे
और एक क्लब बनाया हुआ था उन्होंने अपनी नेबरहुड में, मींस आस पड़ोस के सब लोगों ने मिलकर एक थिएटर क्लब बनाया हुआ था और वहां पर पटोल बाबू हीरो की तरह एक्टिंग करते थे और वो बहुत ज्यादा फेमस थे। Patol Babu was always in demand. His name had appeared in handbills on countless occasions. Once it appeared in bold type near the top. Sitala Kanto Ray, Patol Babu in the role of Parasar. Indeed, there was a time when people bought tickets especially to see him. अब यहाँ पर राइटर ये बता रहे हैं कि पटोल बाबू कितने फेमस थे। कितनी बार जो हैंडबिल्स होते हैं जिसके ऊपर ये लिखा होता है कि हाँ इस क्लब का प्ले इतने बजे यहाँ पर परफॉर्म होगा, उन हैंडबिल्स के ऊपर टॉप पर लिखा होता था सीतलोकांतो रे, पटोल बाबू इन द रोल ऑफ परासर। तो ऊपर एकदम हेडलाइन पे जो ये सपोजिटली ये हैंडबिल है, इसकी एकदम टॉप मोस्ट जो लाइंस थी जो सबसे ज्यादा बोल्ड में लिखी होती हैं, वहां पर पटोल बाबू का नाम होता था और लिखा होता था कि वो ये रोल परफॉर्म करेंगे। और लोग सिर्फ टिकट्स खरीदते थे पटोल बाबू का रोल देखने के लिए, वो इतने ज्यादा पॉपुलर थे। पूरे इस पीस में हमें ये पता चल रहा है कि पटोल बाबू का जो एक्टिंग के साथ रिलेशन था वो कैसा था। पटोल बाबू वॉज रियली पैशनेट एंड ऑब्सेस्ड, मीन्स उनको बहुत ज्यादा प्यार था एक्टिंग से।